Hello everyone. Today I am going to explain you about the periodic property. Periodic property means basically हम आज बात करेंगे atomic size की. Atomic size के बारे में डिस्कशन से पहले आपको फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए. इन द सेम वे फर्स्ट ग्रुप और एटलीस्ट द सेकेंड ग्रुप. दिस मच तो यू रिक्वायर्ड. ओके, रफ आइडिया होना चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल का. तो जब पिछली बार हमने बात करी थी कि अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज का मेजरमेंट होता है एक्चुअली बेस्ड ऑन रेडियस. ओके, एंड द यूनिट ऑफ द रेडियस क्या होती है? दैट इज एंगस्ट्रॉम. ओके, ये डिस्कशन लास्ट वीडियो में हो चुका है. एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज रेडियस? दिस इज एटम, दिस इज न्यूक्लियस. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. अगेन, ठीक है. रेडियस इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द एटम. And the unit is what? Angstrom. ठीक है. Now we discuss about the atomic size. So before the discussion, we write some element and we do the discussion, basic discussion. Basic discussion means whatever you studied in a ninth standard, like sodium. You know the atomic number of the sodium? Atomic number is 11. The configuration of the sodium is 2, 8, 1. Okay. The position of the sodium is count. First, second, and the third. Means it belongs to the third period. And the electron in the outermost shell. This is the outermost one. The electron in the outermost shell is 1. Means it belongs to 1a group. The exact position of the sodium is what? It belongs to the 1a group and in the third period. Understood? If we talk about one more example. If we talk about the chlorine, what is atomic number of the chlorine? It's 17 atomic number. Your periodic table is based on the atomic number, okay? The electronic configuration, it's 2, 8, 7. It's 2, 8, 7. The position of the chlorine, count. 1, 2, and 3. It belongs to the third period. And outermost shell, how many electrons in our outermost shell? 7. It means it belongs to the 7a group. Got it or not? This is about the position of any element. One more, lithium. Atomic number 3. Configuration 2, 1. Can you guess which period and the which group? It belongs to the second period. And which group? Outermost shell, 1 electron. It means it belongs to the 1a group. Got it or not? So if you know the atomic number, you can find out the actual position of the element, okay, in periodic table. Now I am going to write elements of the second period and the first period. So first period, previous discussion हो चुका है अपना. First period, hydrogen and its helium. These are the two elements of the first period. It is called a very short period. Now consider the second one. Second period. Second period start with lithium.
After lithium, we write beryllium, then boron, then carbon, then nitrogen, after oxygen, then fluorine, then after that neon. Okay, these are the elements of which period? These are the element of the second period. Can we guess the atomic number of this one? This is the 1, 2, count 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, and this one, we know that this is which one it is? It is the group number 18, means it is the noble gases. Okay, this one also we know. What are these? These are the halogens. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these all belongs to that. Okay, अब come to the point which we are going to discuss. We are going to discuss about the atomic size. So first is lithium. Here I am writing lithium. Atomic, downside I am writing atomic number. Lithium, its atomic number 3. If its atomic number is 3, its configuration is 2, 1. If the configuration is 2, 1, means there are the 2 shells. So we are going to draw it. This is one shell and this is the second shell. Got it or not? This is what? Nucleus. You know very well. In nucleus में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये दोनों ऑर्बिट्स में कौन रोटेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तभी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ओके, तो हमको मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है. ध्यान से सुनना इस बात को. एटॉमिक नंबर 3 है. कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम है 2, 1 है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितने हैं? 3. इसमें प्रोटॉन्स हैं, ये कितने हैं? 3. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रॉन. ओके, ये 3 प्रोटॉन्स जो हैं ये कहाँ होते हैं? दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस. मतलब ये 3 प्रोटॉन्स तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर है. ठीक है. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम. अब हम प्रोसीड करते हैं. अब हम जाते हैं किस पे? बेरिलियम. व्हाट अबाउट द बेरिलियम? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है. ओके, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी क्या है? 4 है. इसमें प्रोटॉन्स जो है वो भी कितने हैं? 4 हैं. इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ ये है 2, 2. 2, 2 इट मींस ये हुआ न्यूक्लियस जिसके अंदर कितने प्रोटॉन आएंगे? 4 प्रोटॉन्स. यहाँ 3 प्रोटॉन थे, वहां पे कितने हो गए? 4 प्रोटॉन्स. फिर एक शेल बनेगा, इसमें 2. फिर सेकेंड शेल बनेगा, अगेन द 2. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम. हम और आगे प्रोसीड हुए तो नेक्स्ट हमारे पास कौन आया? बोरॉन. ठीक है. एटॉमिक नंबर बोरॉन का जो है, आप देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 5. कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2, 3. करेक्ट, ये हुआ 2, 3. हमने इसका ड्राइंग बनाया. टोटल 5 प्रोटॉन. आपको इतना समझ में आ गया होगा. फर्स्ट शेल में हमने डाला 2 इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड शेल में हमने डाल दिया 3 इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है. इन अ सिमिलर वे आपको हर एक का स्ट्रक्चर अपने आप ड्रॉ कर लेना चाहिए कॉपी में. मतलब मैंने आपको समझाया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो आप सेम वे में क्या बनाएंगे? कार्बन. फिर क्या बनेगा? नाइट्रोजन. फिर बनेगा ऑक्सीजन एंड देन आफ्टर दैट व्हाट? फ्लोरीन. लाइक दिस यू प्रोसीड इट. अब क्या हो रहा है? हम कहाँ मूव कर रहे हैं? पहली चीज, वी आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So we are moving left to right in a period. So left to right in a period में जब हम move करते हैं
तो हम इसके साइज की बात करें तो साइज की बात करने के लिए जो पहला है, इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है 3, इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या है 4, इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या है 5, ऐसे करके 6 7 8 पढ़ते जाएंगे आपके पास प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप बता सकते हो किसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बट ऑब्वियस हम जानते हैं लिथियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फिर आगे गए, बेरिलियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि 4 प्रोटॉन है, बोरोन में और ज्यादा होगा, कार्बन में और ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में और ज्यादा होगा, ऑक्सीजन में और ज्यादा होगा, फ्लोरीन में तो बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, इट्स ट्रू कि इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट उनका शेल जो है वो क्या है, फिक्स है। यहाँ आप देखिए पूरे में शेल नहीं चेंज हो रहे, ये सब एलिमेंट्स किसके हैं, सेकेंड पीरियड के, तो शेल्स फिक्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब आप किसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं, ऐसे करके अट्रैक्ट करते हैं, तो साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? साइज जो है वो रिड्यूस होगा। तो मूविंग लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक साइज reduces. Okay, so is it clear? So it means जो बड़े एलिमेंट्स हैं, साइज जिनका बड़ा है, वो किस साइड होंगे, वो सब होंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जो एलिमेंट्स छोटे हैं वो कहां पर रहेंगे, राइट हैंड साइड पे। क्लियर? अब इसका मतलब है सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ लिथियम, उससे छोटा हुआ बेरिलियम, मतलब साइज आप देखिए तो ये लिथियम, उससे जरा सा छोटा हुआ बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर कौन आएगा, फ्लोरीन। तो जो स्मॉलेस्ट साइज है वो किसके पास है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद यहां बचता है नियॉन, बट नियॉन क्या है, नोबल है। ठीक है, ये क्या है, इनर्ट है, इसका जो एटम जो है वो क्या है, कंप्लीट है, उसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो क्या है, फिल्ड है। तो नियॉन, चूंकि वैसे भी नोबल गैस कुछ अलग ही करते हैं, तो जो नियॉन है वो चूंकि नोबल है, इसलिए इसके एटम में रिपल्शन फोर्स आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट रिपल्शन फोर्स। और ड्यू टू दिस फोर्स इसका साइज जो है वो स्लाइटली क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। मतलब ये स्मॉलेस्ट नहीं है, नियॉन इज नॉट अ स्मॉलेस्ट वन, इट इज थोड़ा सा क्या अपने साइज में बड़ा है कंपैरेटिवली। ओके, तो आपको अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट अपना कौन आएगा, फ्लोरीन, बिकॉज नियॉन लास्ट है और वो नोबल है, तो उसमें आ जाता है रिपल्शन फोर्स, और बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्स उसका साइज जो है स्लाइटली क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बिग हो जाता है। ओके, तो हमारा कंक्लूजन निकला कि दैट साइड, मतलब राइट हैंड साइड जाने पर साइज क्या होगा, डिक्रीज, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं तो साइज क्या होता है, बिगर। ओके, इंक्रीज्ड। तो दिस इज अबाउट द पीरियड। ये हमने बात करी पीरियड की, ये फर्स्ट पीरियड की बात करी, हमने सेकंड पीरियड की बात करी, सेम कंडीशन होती है थर्ड पीरियड में। ओके, तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। अब हम इसमें आगे जाते हैं, अब हम पीरियड को छोड़ के हम साइज का डिस्कशन करते हैं, और किस में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में। और जब हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ग्रुप डिस्कशन के लिए हम ले लेते हैं, इसमें किसको ले लें, फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं। तो हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, नीचे आते जाओ, ग्रुप मतलब नीचे जाओ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ओके, अब सबके एटॉमिक नंबर आप लिखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ऐसे करके सब लिखते जाओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्या है, 11। उसके बाद आए पोटेशियम को 19, इट्स व्हाट 19। फिर हम आए रुबिडियम पर, तो रुबिडियम का हुआ 37। ठीक है, उसके बाद हम आए फ्रेंशियम पर।
तो सॉरी सीजियम का, तो सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, दैट इज 55। अब सवाल उठता है फ्रेंशियम, व्हाट अबाउट द फ्रेंशियम। तो फ्रेंशियम को हम अपने सीरीज मतलब ये पूरे ग्रुप में कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करते, हमारे केस से बाहर हो गया क्योंकि फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। तो अब हमको कंसीडर ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन का भी नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किससे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम से। तो लिथियम को अगर हम डिस्कशन करके देखें तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है, हम सभी जानते हैं 2,1, सोडियम का है 2,8,1, पोटेशियम का है 2,8,8,1, ओके, रुबिडियम का है 2,8,18,8,1 और सीजियम का जो है ये है 2,8,18,8,1। आप क्या देख रहे हो, आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो इसमें 2 शेल हैं, करेक्ट। इसके पास आप जाइए तो इसके पास कितने शेल हैं, 3 शेल्स हैं। आप नीचे जाओ तो इसके पास काउंट करो 4 शेल्स हैं, इसके पास 5 शेल्स हैं, इसके पास 6 शेल्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, तो साइज ऑफ द एटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट अगर आप कंपेयर करो ग्रुप और पीरियड को तो आप कहोगे पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, तो ऑब्वियसली इनमें भी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं। हाँ, इट्स ट्रू कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज के साथ ही साथ हमारा जो ऑर्बिट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो किसका इफेक्ट ज्यादा है, इंक्रीमेंट ऑफ द ऑर्बिट का जो इफेक्ट है वो क्या है, ज्यादा है, और वो डोमिनेट कर देता है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मूविंग अप टू डाउन साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग, द रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द शेल्स आर इंक्रीजिंग। तो मतलब है हमारे पास लिथियम में हमारे पास 2 शेल, अगर हम हाइड्रोजन बोले तो 1 शेल, लिथियम में हमारे पास कितने शेल्स, 2 शेल्स, इसके पास आए तो इसके 3 शेल्स, इसके पास आए तो इसके पास 4 शेल्स, इसके पास 5 शेल्स। तो लाइक दिस हम एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ओवरऑल अगर हम कंसीडर करके देखा जाए तो इन लाइन में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एटम किसका है, सीजियम का है। तो हमको ओवरऑल इस क्लास में ये समझ में आया, हमको 2 चीज अपने दिमाग में रखनी है और बहुत अच्छे से इसको समझना है। बस पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, मतलब पीरियोडिक टेबल का कंपैरिजन। पहली चीज क्या है, व्हाइल यू मूव लेफ्ट टू राइट, जो मैं पहले पढ़ा, व्हाइल यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीजेस। कोई पूछता व्हाट इज द रीजन, तो आपको उसी के साथ बताना है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई साइजेस डिक्रीजेस। बट व्हाइल वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, द साइज इज increases. Why the size is increases? Because the shells, number of shells are increasing, so obviously the size is also increasing. एक बार उसमें हटा दो फ्रेंशियम, कोई बोलेगा फ्रेंशियम क्यों नहीं लिया, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज रेडियो एक्टिव, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये चलेगी हमारी सीरीज, और जब अप टू डाउन जाएंगे तो हमारी सीरीज ऐसी चलेगी। गॉट इट और नॉट? So this much is for this class.